Dear students, we are going to discuss about lysogenic cycle. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Lysogenic cycle is a method by which a virus can replicate its DNA using a host cell. What do you mean? We have discussed about the lytic cycle in our previous lecture. Today we are going to discuss about this lysogenic cycle. It is a type of replication in which the virus replicates its DNA using a host cell. As we all know that virus cannot reproduce on its own. It needs a host cell. एक होस्ट कोशिका की आवश्यकता होती है तभी वायरस अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है. ऑन इट्स ओन वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. So typically what we see that virus can undergo two types of DNA replication. Lysogenic cycle and or lytic cycle. Lytic cycle we have discussed in our previous lecture. Today we are discussing lysogenic cycle. The DNA is only replicated, not translated into proteins. लाइटिक साइकिल में हमने क्या देखा था कि वायरस जो है कोशिका से अटैच होता है और अपना जीनोम उसके अंदर डाल देता है. नाउ दैट डीएनए विल रेप्लिकेट यूजिंग द प्रोटीन ऑफ द सेल और बहुत सारे हेड टेल और नेक बनाता है. फिर वो सब असेंबल होते हैं और बहुत सारे वायरस तैयार हो जाते हैं. देन दे विल ब्रेक दैट सेल एंड कम आउट. तो उसमें उस कोशिका को वो किल कर रहे हैं, यानी उस बैक्टीरिया जिसके अंदर वो प्रवेश किए हुए थे उसको यूज़ किया. उन्होंने बहुत सारे वायरस बनाए और फिर उस सेल को ब्रेक करके वो बाहर निकलते हैं. But in lysogenic cycle what we see that the DNA is replicated but it is not translated into proteins. Whereas in lytic cycle the DNA is multiplied many times and proteins are formed using processes stolen from the बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को यूज़ करके उसने अपने बहुत सारे पार्ट्स बनाए और फिर उसको असेंबल करके वायरसेस प्रोड्यूस किए. नाउ अ बैक्टीरियोफेज हम किसको कहते हैं? उस बैक्टीरिया को जिसके अंदर वायरस ने प्रवेश किया हुआ. तो इट इंजेक्ट्स द डीएनए इनटू द बैक्टीरिया. नाउ द डीएनए gets replicated when the bacteria undergo cell division. जब भी बैक्टीरिया सेल यानी डिवाइड करेगा, कोशिका अपना खुद का कोशिका को डिवाइड करेगा, तब तब जो है वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होता रहेगा. Now as I had told that because in lysogeny what happens that it will only insert its genome into the genome of the bacteria. तो इट इज़ नॉट हार्मिंग द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को वो ख़त्म नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको यूज़ कर रहा है और जब जब वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होगा तब तब इसका भी जो वायरस का जो जीनोम है वो भी रिप्रोड्यूस होता रहता है. बट लाइटिक साइकिल के अंदर हमने क्या देखा, उस वायरस ने पूरे बैक्टीरिया को ही यूज़ किया, बैक्टीरिया को ब्रेक किया और वो बाहर निकल गए सारे. Now this is the simple process in which we can see that the बैक्टीरियोफेज यानी जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर वायरस अटैच हुआ और उसके जीनोम को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है. नाउ दिस सेल विल बी नोन एज बैक्टीरियोफेज, यानी वो कोशिका जिसके अंदर बैक्टीरिया का भी डीएनए है और वायरस का भी डीएनए है. नाउ व्हेन this genome has been inserted into the bacterial cell. बैक्टीरिया कोशिका के अंदर वो जीनोम अंदर आ गया है. The virus can replicate its DNA through lysogenic cycle or the continued replication of viral DNA through bacterial division. Now when the conditions are right, the viral DNA will undergo induction and the DNA will switch to lytic cycle, in which the DNA is actively transcribed and translated into protein shells which can harbor viral DNA outside of the cell. At a certain point, the infected
bacteria will be full of virus, each encapsulated in a viral capsid protein. The cell will lyse or burst, and the virus will be released into the environment, able to infect other bacteria. So, what we mean to say that the bacteria which has been infected by the virus, वायरस ने जब अपना जीनोम अंदर डाला है उसके, तो वो दो साइकिल्स से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक तो है लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में वो जीनोम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारे वायरसेस एनकैप्सुलेटेड होंगे और उस सेल को वो बर्स्ट हो करके बाहर आता। लाइसोजेनिक में क्या किया इसने, अपने जीनोम को डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुआ तब तब वो जीनोम भी मल्टीप्लाई होता रहा। तो दिस विल बी गोइंग ऑन। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं, बहुत सारे जीनोम्स तैयार हो गए हैं, नाउ दिस जीनोम दैट इज द लाइसोजेनिक साइकिल विल स्विच ऑन टू लाइटिक साइकिल। एंड लाइटिक साइकिल में क्या होगा, उसी एक ही बैक्टीरिया के कोशिका में बहुत सारे वायरसेस तैयार होंगे और उस बैक्टीरिया को नष्ट करके यानी किल करके या बर्स्ट करके वो सब बाहर निकल जाएंगे। नाउ यू कैन सी क्लियरली हियर, जो लाइटिक साइकिल हमने अपने प्रीवियस उसमें देखा था, अटैचमेंट हुआ वायरस का और उस जीनोम को उसने उसके अंदर एंटर कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब वो वायरस का जो जीनोम है रेप्लिकेट करेगा उस कोशिका के अंदर, बैक्टीरियल कोशिका के अंदर, और उसके प्रोटीन्स को यूज़ करते हुए उसने बहुत सारे टेल, हेड, नेक और जीनोम सब तैयार कर लिए। वो सब असेंबल हो जाएंगे और उस कोशिका के अंदर बहुत सारे वायरसेस तैयार हो गए। नाउ दिस वायरसेस विल, बेबी वायरसेस भी कह सकते हैं हम इनको, वो उस बैक्टीरिया को ब्रेक करके बाहर रिलीज हो जाएंगे और ये वायरस अब दूसरे नए बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करके और फर्दर रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ इन दिस लाइसोजेनिक साइकिल व्हाट वी सी, the genome of the virus has been inserted into the genome of the bacteria। जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया है। अब जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तब तब अपना डीएनए को भी वो रेप्लिकेट कर रहा है और साथ में वायरस के डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं और बहुत सारे जीनोम्स तैयार हो गए हैं, तो दिस विल स्विच ऑन टू लाइटिक साइकिल। अब एवरी बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे वायरसेस तैयार हो जाएंगे लाइटिक साइकिल के प्रोसेस से, एंड एवरी बैक्टीरियल सेल विल बी लाइज्ड या ब्रेक करके उसके मेम्ब्रेन को वो सारे वायरस बाहर रिलीज हो जाएंगे, so that they can infect other bacterial cells. So what we see that once a new capsid containing viral DNA finds its way to a bacteria, the process starts over. If the conditions are no longer right for the lytic cycle, the lysogenic cycle resumes। अगर lytic cycle के लिए conditions favorable नहीं हैं तो lysogenic cycle resume रहेगा, यानी वो कंटिन्यू होता रहेगा। जीनोम जो है वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। नए कैप्सिड्स और नए टेल हेड नहीं बनेंगे, सिर्फ जीनोम जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो एक किसी को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इट अपीयर्स कि वायरस जो है वो डॉर्मेंट हो गया है। बट व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर द बैक्टीरिया विल बी मल्टीप्लाइंग, इट्स जीनोम इज आल्सो रेप्लिकेटिंग एंड मल्टीप्लाइंग। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर तो वो बैक्टीरिया को कोई डैमेज नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट किलिंग इट, इसीलिए बैक्टीरिया हेल्दी दिखाई देता है। बट वो बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है, वायरस के जीनोम को भी अपने डीएनए के साथ रेप्लिकेट कर रहा है।
Now, once conditions become favorable for the virus to leave the bacteria, it will exit the lysogenic cycle and enter the lytic cycle. जैसे ही उसको लगता है कंडीशंस फेवरेबल हो गए, अब मुझे बैक्टीरिया को छोड़ना है, तो वो लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में एंटर होगा और बहुत सारे वायरसेस प्रोड्यूस होंगे और उस बैक्टीरिया को तोड़ करके वो सब बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं. Now here you can see both the cycles, the lytic cycle as well as the lysogenic cycle. So the virus which attaches to the bacteria to form the bacteriophage, it can either go through the lytic cycle or it can go through the lysogenic cycle. या तो वो लाइटिक साइकिल में एंटर करके बहुत सारे वायरस बना सकता है, या लाइसोजेनिक जिसके अंदर वो अपने जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंसर्ट करेगा और बैक्टीरिया बहुत सारे जैसे जैसे मल्टीप्लाई होंगे वैसे वैसे उसका जीनोम मल्टीप्लाई होगा और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे तो ये लाइसोजेनिक साइकिल से वायरस लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा. तो वायरस कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ द टेक्निक्स लाइटिक एंड द लाइसोजेनिक cycle. Now the various steps in lysogenic cycle are: first is bacteriophage. Virus infects a bacteria by injecting its DNA into the bacterial cytoplasm. Second step is the viral DNA is read and replicated by the same bacterial proteins that replicate bacterial DNA. यानी जो फर्स्ट स्टेप में वायरस ने अपना जीनोम इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है वो डीएनए के जीनोम के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, रेप्लिकेट होता रहेगा. Third step is that the viral DNA can continue using the bacterial machinery to replicate or it can switch to lytic cycle. If the viral DNA stays in the lysogenic cycle, one copy or few copies of the DNA exist in many bacteria. In the lysogenic cycle, the DNA only gets replicated when the bacteria are replicating their own DNA. तो लाइसोजेनिक साइकिल में हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है वायरस, वो सिर्फ रेप्लिकेट हो रहा है. जितने कॉपीज बैक्टीरिया के बनेंगे उतने ही कॉपीज उसके भी जीनोम के बन रहे हैं. बिकॉज बैक्टीरिया जब डिवाइड कर रहा है अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, साथ में वो वायरस के डीएनए को भी रेप्लिकेट कर रहा है. तो बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरस का डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है. तो फॉर अ बैक्टीरिया इट विल लुक लाइक इट इज़ हेल्दी, बट it is actually multiplying the genome of the virus. Next, fourth step में हम क्या देखते हैं, eventually the viral DNA will switch to lytic cycle. अब जब conditions favorable हो जाते हैं और बहुत सारे जीनोम्स बन गए हैं, कॉपीज बन गए हैं और हर बैक्टीरिया में वो इतने सारे बैक्टीरिया जितने डिवाइड हुए हैं उन सब में पहुंच गया है, तो इट विल स्विच टू लाइटिक साइकिल. अब लाइटिक साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरियल मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए बहुत सारे कैप्सिड्स, प्रोटीन्स, कवर्स, हेड, डीएनए वायरस के तैयार होते हैं और ये सब असेंबल होकर के बहुत सारे एक ही बैक्टीरिया के कोशिका में बहुत सारे वायरस तैयार होते हैं और उस बैक्टीरिया को ब्रेक करके वो सब बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं. नाउ दीज कैप्सिड्स गेट रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एंड इन्फेक्ट न्यू बैक्टीरिया. तो ये जो रिलीज हुए हैं वो अन्य बैक्टीरियल कोशिकाओं को इन्फेक्ट कर सकते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं. If the bacteria is weak or dying, the virus may enter straight into lytic cycle in order to avoid dying with the bacteria. अगर उसको लगता है कि बैक्टीरिया वीक है या मरने वाला है तो वो तुरंत लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा और अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करके और बहुत सारे वायरसेस तैयार कर लेगा. So we can see these two cycles, lytic cycle and lysogenic cycle. लाइटिक साइकिल जिसमें बैक्टीरियल मैकेनिज्म और प्रोटीन्स को यूज़ करके उस होस्ट कोशिका को
लाइस यानी तोड़ करके बहुत सारे वायरस रिलीज हो जाते हैं, और लाइसोजेनिक में जो जीनोम है वो इंट्रोड्यूस हो गया है डीएनए के साथ, वो भी रेप्लिकेट हो रहे हैं। जो बैक्टीरियल डीएनए है होस्ट सेल का, उसके डीएनए के साथ वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहे हैं, और जितनी बार बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा उतनी बार उसका भी जीनोम मल्टीप्लाई हो रहा है। Then it can enter into the lytic cycle. When it feels that the circumstances are favorable, वो लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में स्विच ओवर हो जाएगा। Now the differences: lytic cycle is the main viral replication method that results the destruction of the infected cell and new viral cells are released. Lysogenic में क्या होता है? In lysogenic cycle, the viral DNA is integrated into the host genome. Viral DNA does not integrate into the host cell DNA. Lytic cycle में होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं होता है, जबकि लाइसोजेनिक में वो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। होस्ट डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड इन दिस फेज in the lytic cycle, whereas in lysogenic cycle we see that the host DNA is not hydrolyzed. लाइटिक साइकिल में 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें अटैचमेंट होता है, पहले पेनिट्रेशन होता है यानी वायरस का जीएनए अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और फिर उस बैक्टीरियल मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए बहुत सारे सिंथेसिस होते हैं टेल हेड के, और फिर उसके अंदर वो असेंबल होते हैं, मैच्योरेशन होता है, असेंबल होकर के फिर उस बैक्टीरिया को ब्रेक करके वो बाहर आता है। लाइसोजेनिक में 6 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वायरल अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इंटीग्रेशन, एक्सीशन, इन्फेक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन। इसके अंदर क्योंकि लाइसोजेनिक के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए के अंदर वायरल डीएनए इंट्रोड्यूस यानी उसके अंदर फिक्स हो जाता है। In lytic cycle we see that the viral DNA replication occurs independently, और जबकि लाइसोजेनी में हम क्या देखते हैं, वो डिपेंडेंट है होस्ट के डीएनए पे, क्योंकि जब जब होस्ट का सेल डीएनए रेप्लिकेट होगा तब तब वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, क्योंकि वायरल डीएनए उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। लाइटिक साइकिल में द साइकिल इज वायरुलेंट, यानी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, और लाइसोजेनिक के अंदर इट इज़ नॉन वायरुलेंट। Lytic cycle में viral particles are released from the host cell by host cell lysis, यानी होस्ट की कोशिका को ब्रेक करके वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, और जबकि इसके अंदर इस तरह से नहीं होता है क्योंकि जीनोम इंटीग्रेटेड होता है। लाइटिक साइकिल शॉर्ट पीरियड होता है क्योंकि थोड़े ही समय में बहुत सारे वायरस तैयार हो जाते हैं और उस कोशिका को वो ब्रेक करके बाहर आते हैं, और जबकि लाइसोजेनिक जो है वो लॉन्ग टर्म है, वो डॉर्मेंट होता है, यानी जीनोम उसका रेप्लिकेट होता रहता है। जब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा, बैक्टीरियल डीएनए एंड नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द जीनोम्स आर प्रोड्यूस्ड। नाउ व्हेन इट विल एंटर इनटू द लाइटिक साइकिल, देन ओनली दैट बैक्टीरिया विल बी हार्म्ड, यानी उस बैक्टीरिया को तोड़ करके वो बाहर आ सकते हैं। इसीलिए लाइसोजेनिक जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। So we see that the virus, it attaches to the cell membrane of the bacterial cell, introduces its DNA into it, and without the help of the host cell it cannot reproduce. अगर उसको रिप्रोड्यूस करना है तो उसको एक होस्ट सेल की कोशिका की आवश्यकता होती है, जिसकी हेल्प से वो आइदर लाइटिक साइकिल से और लाइसोजेनिक साइकिल से वो रेप्लिकेट कर सकता है अपने डीएनए को, and number of viruses can be reproduced. Thank you so much.